Madam, thanks for your presence also. Now we are not taking here any question answer session because due to time management, we will take it later on. I am welcoming our next speaker, Dr. Raj Thakur ji, National Secretary of All India Manujam Math Club, who is affiliated to Vipnet Vigyan Prasar, Government of India. Sir, please. His topic is History of Mathematics. And after that, we will take the question answer session for both Dr. Niradhar sir or Rajesh Thakur. Okay, good afternoon to all. अंजन भाई आवाज आ रही है? अंजन जी आवाज? Yes sir. Okay. Good afternoon. Thank the Dr. Niladhar Dey sir for the enrichment session. So let me begin my session with the few words I have just noted it down from Dr. Niladhar's Dey talk. One thing was exploring new things. Second was the constructive approach, and the third thing I like engagement of the learner. Hopefully, most of the teachers in the group are from the mathematics background that I can see. So hopefully, I will just concentrate on mathematics. Yeah. So today is the 9th of August, and the birthday. This is John Piaget's birthday. So the motto of the talk that Dr. Niladhar Dey and Dr. T.P. Sharma just started was just focusing on the child-centric approach. And John Piaget, we all know that the father of psychology and the child psychology especially. So sir, thanks for sharing a great information also. No, I thought that everybody is taking about the constructive approach and all. So let me begin my session. So I am just sharing few slides, then I will begin with. Okay. So the topic, those in the participant who know me, they know that I particularly take such type of topic in discussion. So the topic of mine is math, mystery in our education system. And since the this is a Ramanujan lecture series, so let me begin with Ramanujan's story. So here is the first slide for you. Okay. This is a quote from J.B.S. Halden. And you can just read the discussion on Ramanujan are useless unless we learn something from his life. It is my experience of 5 years that Indian institution and university have learned nothing. Had Ramanujan been alive today, he would have failed to secure a lecturer's job in a college of Indian village on the ground that he possesses no degree. I know that he was offered a job in India after his being selected a fellow of Royal Society in England. It is highly disgraceful that Indian talent needs foreign recognition. So मैं अपनी बात यहीं से स्टार्ट करता हूं. 2014 में मंजुल भार्गव को फील्ड मेडल मिला, जिसको हम लोग नोबेल प्राइज कहते हैं, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज. और उसके बाद जो ये एनसीएफ 2020 आया है, उसमें वो एक कमिटी मेंबर है. बड़ी अच्छी बात है. और मेरे ख्याल से उनके सजेशन के बाद जो इंडिया में जो करिकुलम चुनने की आजादी मिली है,
मेरे ख्याल से ये इनिशिएटिव मंजुल भार्गव जी का ही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो करिकुलम डिजाइनिंग है वो ये है कि इफ यू हैव टेकन एडमिशन इन बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडियरी में पढ़ना पड़ेगा, सो यू डोंट हैव एनी चॉइस। तो ये जो नया एनसीएफ है जिसमें 2014 के फील्ड मेडलिस्ट को शामिल किया गया, उसके बाद ये कहिए कि ये बड़ा एक आने वाले लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा कि हम सब्जेक्ट की चॉइसेस ले सकते हैं। चलिए अब मैं आगे अपनी बात रखता हूं। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स दिए हैं, मैं यहाँ से अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। पहला पिक्चर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है, ये है सीएफ गॉस, द प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। सेकंड पिक्चर जो देख रहे हैं वो रेने डेकार्टे के हैं। थर्ड, डेंजिंग, फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फिर अगर आइए रामानुजन, और सबसे ऊपर में मंजुल भार्गव। अब मैं 2-2 मिनट लूंगा इनके बात करने के लिए, क्योंकि मेरे टॉपिक लिखा हुआ है नीचे, रोल ऑफ टीचर। अभी हम लोग बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और इंगेजमेंट ऑफ लर्नर की। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे कॉर्नर में, जो हमारे पास पिक्चर है सीएफ गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस की। हम सब जानते हैं कि कार्ल फ्रेडरिक की अब एक स्टोरी बड़ी पॉपुलर है कि क्लास 3rd में थे और उनको टीचर ने एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, और उन्होंने क्लास 3rd के बच्चे ने पैटर्न गेस किया और वो आंसर 5050 लेकर आ गए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और उस घटना से जो सीख मिली कि जो सीएफ गॉस के टीचर थे बर्टनर, उन्होंने ब्रूसबर्ग के किंग को अप्रोच किया, और ब्रूसबर्ग के किंग ने गॉस के पढ़ाई का सारा खर्चा अप टू पीएचडी पे किया। मतलब एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है वो देखिए। एक टीचर का रोल, टीचर ने इस बच्चे की प्रतिभा को पहचाना, और इस प्रतिभा को पहचानने के बाद वो वही नहीं रुके, इन्होंने जाके इसके बारे में परिचय कराया वहां के किंग को, और उन्होंने सारा खर्चा दिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर्स की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। दूसरा जो आप देख रहे हैं, रेने डेकार्टे, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनकी आपने स्टोरी पढ़ी होगी। ये बड़े बीमार रहते थे और इन्होंने स्कूल जाना बड़ा लेट से स्टार्ट किया, और इनके टीचर की कल्पनाशीलता देखिए कि इनके टीचर ने इनको अलाउ किया स्कूल में देर से आने के लिए। ये आते थे, धूप में बैठे रहते थे, इनको क्लास नहीं करना होता था, ये धूप में बैठते थे क्योंकि इनको ठंड, निमोनिया की बीमारी थी। कॉपरेशन देखिए टीचर्स का। एक बच्चा क्लास में स्कूल आ रहा है और क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, और टीचर परमिशन दे रहा है कि ठीक है, आप बीमार हो, आपको धूप में बैठने की जरूरत है, और आपको परमिशन है। तीसरा जो पिक्चर है आपको दिख रहा होगा, जिसपे मैंने कर्सर रखा है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फादर कहे जाने वाले जॉन डेंजिंग। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है कि ये इनके जो प्रोफेसर थे, उन्होंने मास्टर्स की क्लास में 2-3 प्रॉब्लम लिखे, और ये लेट से पहुंचे। इन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे, और उनको लगा कि ये होमवर्क है, और उन्होंने ये क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट डाउन किया, और ये घर में जाके सॉल्व करने लगे। और 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, इन्होंने वो सारे प्रॉब्लम जो अनसॉल्व थे, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने प्रोफेसर को दे दिया। और जरा इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, जब वो पीएचडी के थीसिस की बात कर रहे थे, तो उनके प्रोफेसर ने कहा कि आपने जो 2 प्रॉब्लम्स थे वो अनसॉल्व प्रॉब्लम थे,
आपने उसको सॉल्व कर दिया, आप उसको बाइंड करके मुझे दे दीजिए, वो पीएचडी का थीसिस हो जाएगा। ये कमिटमेंट देखिए टीचर का। चौथा पिक्चर, हम सारे जानते हैं रामानुजन की बात है। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, इनके टीचर्स ने, इंडिया में भी इनको कुछ टीचर्स ने प्रमोट किया, और जीएच हार्डी ने अपने इनके बारे में लिखा कि रामानुजन इज माय डिस्कवरी। और लास्ट अपने मंजुल भार्गव। मंजुल भार्गव सब जानते हैं, इनको 2014 के फील्ड मेडलिस्ट रहे हैं और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है। इनकी मदर भी प्रोफेसर है मैथमेटिक्स की। इनको कम एज होने की बावजूद हायरार्की वाला सिस्टम नहीं है, इनको प्रमोट करके प्रोफेसरशिप दी गई। ये जो मैंने 5 पिक्चर्स आपको दिखाए हैं, उसमें मैं रोल ऑफ टीचर्स और रोल ऑफ सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। रोल ऑफ टीचर क्या है कि आप अपने टैलेंट को, बच्चे के टैलेंट को पहचाने। लीलाधर सर ने कहा क्रिएटिविटी की बात, इंगेजमेंट ऑफ लर्नर। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो इंगेजमेंट ऑफ लर्नर वाला थोड़ा सा कम है। प्रमोशंस आप कहिए कि ना के बराबर है। अब मैं आगे चलता हूं। आपने ये बोर्ड देखा होगा, जगह जगह पे छोटे छोटे गांव में लिखा होता है बंगाली क्लिनिक। बंगाली क्लिनिक में क्या होता है, एक डॉक्टर है, वो जो कंपाउंडर है किसी डॉक्टर के यहाँ कुछ दिनों तक प्रैक्टिस किया है और उसको बहुत कुछ आ गया और उसने अपना क्लिनिक खोल लिया। और जो छोटे तबके के लोग हैं उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, ये हमारे पास हॉस्पिटल है, यहाँ पर बड़े पढ़े लिखे एमबीबीएस एमडी किए हुए डॉक्टर्स हैं। इन दोनों के डॉक्टर ही दोनों डॉक्टर हैं, एक ने प्रोफेशनली डिग्री एक्वायर किया हुआ है और एक ने ट्रेनिंग सीख रखा है। अब यदि आप हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास जाइए तो वो डॉक्टर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में या बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी की मैं बात कर लूं, वहां वो आपको कोई भी डॉक्टर जो किसी बड़े हॉस्पिटल, फोर्टिस, मैक्स या किसी भी मध्यम दर्जे का भी हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो, उस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर आपको सुई कभी नहीं लगाएगा। वो आपका ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेगा। वो डॉक्टर आपका पल्स रेट चेक नहीं करेगा। ये काम करेगा कौन? कंपाउंडर। पढ़ाई डॉक्टर की किसने की? डॉक्टर ने। यदि आपको चोट लग गई तो आपके घावों पे पट्टी कौन बांधेगा? कंपाउंडर या बंगाली डॉक्टर। जो डॉक्टर एमबीबीएस एमडी की डिग्री हासिल करके है वो आपके घाव को छुएगा नहीं, वो एक प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेगा भैया ये दवाई ले लेना। और मैं ये 2 तरह के सिस्टम के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। एक बंगाली डॉक्टर है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन यदि आपको छोटी मोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी भी मान लीजिए, लेकिन बड़े डॉक्टर को, अभी आप हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको सुई नहीं लगाएगा, पल्स रेट मेजर नहीं करेगा, आपका बीपी मेजर नहीं करेगा। ये सारे काम एक बंगाली डॉक्टर कर लेगा। जो डॉक्टर जिसने एमबीबीएस और एमडी किया है उसको करना चाहिए, वो नहीं करेगा। हमारे यहाँ का सिस्टम भी यही है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में बड़े बड़े वो कंपार्टमेंट बने हुए हैं। कंपार्टमेंट का मतलब मैं पहले ही सॉरी कह लेता हूं कि हमारे यहाँ जो, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, माना कि उनको अब टेंसर एनालिसिस, आप टोपोलॉजी और वेक्टर एनालिसिस या फिर इंटीग्रेशंस में बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में मजा आता है। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम जड़ में है। जड़ का मतलब हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा कोलैप्स। तो हमारे यहाँ होना ये चाहिए कि जो बड़े यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, आप बड़े खुश होते हैं कि भाई मैं प्रोफेसर हूँ जेएनयू, डीयू, एएमयू, बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, तो आपका दायित्व बड़ा है। आप समझिएगा मेरी बात को।
एक MBBS MD के डॉक्टर्स का दायित्व बड़ा है, लेकिन वो दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा, वो निर्वाह कर रहा है कंपाउंडर। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी बर्बादी के पीछे अब जो एक फैक्टर है वो यही है। हमारे यहाँ पार्टीशन कंपार्टमेंट सिस्टम बड़ा सा है। यदि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं तो मैं अपने तक सीमित हूं कि यार मुझे 10th के सिस्टम से या 12th के इंटरमीडिएट स्कूल के सिस्टम से यदि मैं BEd कॉलेजेस में ना पढ़ा रहा हूं, मुझे क्या लेना देना। मेरा इंटरेस्ट टेंसर एनालिसिस पे है, रीमन हाइपोथेसिस पे है, डबल इंटीग्रेशन पे है, ट्रिपल इंटीग्रेशन पे है, LCM SCF नंबर सिस्टम जो हमारा फाउंडेशन है उस पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहीं से सिस्टम कोलैप्स हो गया। दूसरा देखिए, स्कूलों में भी कंपार्टमेंट है। मैं PGT हूं तो मैं 11th 12th पे फोकस हूं। मेरे लिए क्लास 1 से लेकर 10th का बच्चा अहमियत नहीं रखता। यदि मैं TGT हूं तो मेरे लिए फोकस एरिया 6 to 10th है, 1 to 5 नहीं। जबकि प्रोफिशिएंसी आगे ज्यादा है। मान लीजिए कॉलेज के प्रोफेसर को नॉलेज ज्यादा है, उनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस ज्यादा है। बाहर के देशों में क्या है, यदि आप UK US चले जाएं, वहां पर समर जब इंटर्नशिप होती है तो समर इंटर्नशिप में जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं वो छोटे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो जब तक बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट छोटे लोगों के साथ, छोटे बच्चों के साथ नहीं होगा, और जब तक हम इस कंपार्टमेंट सिस्टम को कंप्लीट कोलैप्स नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा ही रहेगा। हम पहले 10+2+3 कर लें, फिर बाद में उसको 5+3+4+4 कर लें, फिर आगे वाली गवर्नमेंट कुछ और भी कर देगी, लेकिन होना कुछ नहीं। तो आप मैंने ये एग्जांपल इसीलिए लिया कि एक जो बड़ा डॉक्टर है, जो MBBS MD है या FRCS है, उसका रोल पेशेंट के रूप में को देखने में ज्यादा होना चाहिए। एक बड़े प्रोफेसर का रोल छोटे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा होना चाहिए, उसको सुधारने में, सजेशन देने में नहीं। सजेशन सब दे सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट की मैं बात कर रहा हूं। चलिए अब आगे नीलाधर शेख डे सर की मैं बात को आगे रखता हूं। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो 1 वे है, जबकि सिस्टम 2 वे होना चाहिए। 1 वे सिस्टम का मतलब है, आप समझ रहे हैं कि एक रोड है, उस पर आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, तो उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा है। यदि 2 वे रोड है तो एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं, दूसरी तरफ से आ रही हैं, एक्सीडेंट का खतरा कम है। हमारे यहाँ या हम लोगों का जो सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा, मोनोटोनस है। मैथमेटिक्स में मोनोटोनस वाला सिस्टम बड़ा खतरनाक है। अब रामानुजन ने क्लास 3rd में, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी है कि रामानुजन ने क्लास 3rd में अपने टीचर से पूछा, उनके टीचर ने बताया इफ यू डिवाइड ए नंबर बाय द नंबर इटसेल्फ यू विल गेट 1 एज ए क्वोशिएंट। रामानुजन ने कहा सर व्हाट अबाउट 0 by 0 विल वी गेट 1 एज ए क्वोशिएंट। डांट के बिठा दिया। तो हमारे यहाँ सिस्टम यही है, हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे। एक्सप्लोरेशन तभी होगा जब तक हम ट्रैफिक हमारा 2 वे नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। हम आके ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू कर दें, बच्चे ने क्वेश्चन रेज किया, हमारी भी कंपल्सन है, हमें टीचर्स एज ए टीचर हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में अच्छाई तभी आएगी जब कम्युनिकेशन 2 वे होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो एक म्यूट स्पेक्टेटर है। तो क्योंकि मैं यहाँ सारे टीचर्स हमारे साथ हैं, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं अपनी बात आपके साथ करूं। तो जब तक हम 2 वे सिस्टम को, 2 वे ट्रैफिक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 वे ट्रैफिक का मतलब आप समझ रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट जो सर अभी बात कर रहे थे, डे सर, इंगेजमेंट ऑफ लर्नर। तो जब तक हम लोग इंगेजमेंट ऑफ लर्नर अलाउ नहीं करेंगे तो वो 1 वे ट्रैफिक में कुछ होना नहीं है। अब मैं आगे चलता हूं। अब मैंने ऊपर पे रखा है व्हाई आर वी बिहाइंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। देखिए हमने स्टार्ट किया, इंडिया ने 0 दिया, बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट इंडिया में आई, पेशावर में बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट मिली जिसकी 70 के करीब पेजेस जो हैं, ऑक्सफोर्ड के
बॉडिलियन लाइब्रेरीज में है। बड़ी अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम जीरो कहते हैं कि 3rd सेंचुरी में लिखी गई बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में मिली। इंडिया में आपका देखिए, यदि आप ग्वालियर गए हों तो ग्वालियर में एक जीरो टेम्पल है। 876 में किंग जयवर्धने थे। किंग जयवर्धने ने एक ब्रह्मा का टेम्पल इस्टेब्लिश किया। उस टेम्पल के ऊपर पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसको हम लोग रामा रॉक कहते हैं। उस रामा रॉक में 270 लिखा है और कहते हैं वो 270 का जो जीरो का सिंबल है उस रामा रॉक से आया। ऐसा वाला ही जीरो लिखा है। कभी आप जाएं ग्वालियर में, लेकिन डिस्कवर किसने किया? बीबीसी चैनल वाले गए, उन्होंने उसके ऊपर पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, तब हमें पता चला यार इंडिया में तो जीरो टेम्पल भी ढूंढा जीरो इंडिया ने। और 1220 में फिबोनाची ने एक बुक लिखी लीबर एवेसी। उसके बाद वेस्टर्न वर्ल्ड को पता चला इंडिया में तो बहुत पहले जीरो भी ढूंढ लिया और फिर नंबर सिस्टम आया। आर्यभट्ट ने साइन के ऊपर पे काम किया, पाई के ऊपर पे आर्यभट्ट ने काम किया, साइन सीरीज के ऊपर पे माधवा ने काम किया, फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर पे हेमचंद्र ने काम किया। लेकिन सिस्टम क्या है, हम लोगों ने अपने आप को लिमिटेड कर लिया। हमारी जो नॉलेज है वो मेरी बपौती है, मेरी जानकारी। आप जैसे देखते होंगे ट्यूशन में नोट्स होता है ना, यदि आप फिटजी में पढ़ रहे हैं तो वहां पर कह दिया जाता है यार फिटजी का नोट्स दूसरे बच्चे को मत दे देना, वो उससे सीख लेगा। तो हमारा जो नॉलेज है हम लोगों ने अपनी बपौती ले रखी है कि मैंने जो सीखा है वो उसका एक्सेस किसी के पास होना नहीं चाहिए। बेशक हमने पेटेंट नहीं कराया हो, लेकिन पेटेंट से ज्यादा पावर हमारे पास। हमने जो सीखा वो मेरी है, मेरे स्टूडेंट जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उसके पर उस तक है, उसके आगे वो जाना नहीं चाहिए। तो जब जाएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? जब तक इंडिया ने जीरो ढूंढा, यदि ये इंडिया में बहुत पहले बात है हमने फैला दी होती तो अलबरूनी को इंडिया आके अपनी बुक में लिखना नहीं पड़ता कि इंडिया ने जीरो ढूंढ दिया और उसको 1220 में फिबोनाची को ट्रांसलेट करके लीबर एवेसी में लिख के वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाने में इतना टाइम पीरियड नहीं लगता। फिबोनाची ने सीक्वेंस 12 सेंचुरी में ढूंढा गया, इंडिया में 8 सेंचुरी ने ढूंढ दिया। 400 साल पहले आपने चीजें ढूंढ ली। भास्कराचार्य ने 11 सेंचुरी में कैलकुलस के बारे में कंसेप्ट बिल्ड किया, लिबनीज ने 16 सेंचुरी में किया। ये 500 सेंचुरीज का गैप है। अभी जो हम बात कर रहे थे जेबीएस हेल्डन की, हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में एक आईआईटी कानपुर में एक लेक्चर दे रहा था तो मैं वहीं तो मैंने स्टार्ट किया कि कानपुर के यदि जूते को यदि आप कानपुर के शोरूम में आप बेचें कि कानपुर मेड इन कानपुर तो नहीं बिकेगा। अब आप उसमें मुहर लगा दीजिए कि ये रेड शेप का है, एडिडास का है, तो वो थोड़ा सा ये कोई लिख रहा है, थोड़ा सा जरा सा एनोटेशन बंद कीजिए। हाँ, तो हमारे यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड से जैसी हमें मुहर मिलती है ना, जैसे जेबीएस हाल्डन ने कहा कि रामानुजन को वेस्टर्न वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिला, एफआरएस मिला, तो इंडिया में देखिए उनको मद्रास यूनिवर्सिटी ने भी स्कॉलरशिप दी और भगवान बन गए। इसके पहले भी वो उतने ही टैलेंटेड थे, लेकिन हमने उनको रिकॉग्निशन नहीं दिया क्योंकि हमारे यहाँ कंपार्टमेंट सिस्टम है। पीआईटी वाला टीजीटी वाला पीआईटी को घूरेगा, पीजीटी को पीजीटी घूमेगा, पीजीटी वाले को प्रोफेसर घूमेगा, उसको एसोसिएट प्रोफेसर घूमेगा, रीडर, मतलब इतने सारे कंपार्टमेंट है, सब अपने आप में सुपीरियर है। तो ये वाली लाइन जब तक हम हटाएंगे नहीं तो फिर ये वाला सिस्टम होगा कि वाई वी आर बिहाइंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। मंजुल भार्गव को 2014 में फील्ड मेडल मिला, उसके बाद देखिए इंडिया में अमर सेन को नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद इंडिया में उसको भारत रत्न और पद्मश्री पद्म विभूषण उसके पहले भी दे सकते थे हम। तो हमें वेस्टर्न वर्ल्ड का रिकॉग्निशन चाहिए। चलिए मैं आगे चलता हूं। तो मैंने यहाँ यही लिखा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम टीचर्स एज ए कम्युनिटी नहीं है, हमने अपने आप को कंपार्टमेंट कर रखा। पीजीटी एक ग्रुप, पीजीटी स्कूलों में भी ग्रुपीज में, मैं केवीएस में मैं पहले एमएनसी में था मैथमेटिकल प्रोग्रामर। तो जब मैंने बाद में मैं टीचिंग लाइन में स्विच हुआ, जब मैंने मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट छोड़ के जब मैं टीचर बन गया, तो मैंने देखा जब मैं केवीएस में था एयरफोर्स में राजस्थान में,
तो पीजीटी का एक अलग ग्रुप, पीजीटी का अलग ग्रुप, स्टाफ रूम भी अलग पीजीटी का, पीआरटी का अलग ग्रुप। तो हमने कंपार्टमेंट, अच्छा मैथमेटिक्स वाला अपने आप को एक अलग से सुपीरियर समझ रहा है, मैथमेटिक्स वाला है तो हिंदी वाले से थोड़ा एक अलग इंफेरियर और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स चल रहा है। तो हमने, जबकि अब आप देखिए कि हमने संस्कृत से भी बहुत चीजें ले रखी है, हमारा बहुत सारा नॉलेज आप संस्कृत बेस्ड है। अब आप तो ये महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, महात्मा बुद्ध की जब शादी हो रही थी तो उनसे गुरु अर्जुन देव ने टेस्ट लिया, उनसे पूछा कि चलिए आप 10 लाख से आगे के नंबर्स को बताइए इन मल्टीपल्स ऑफ 10। तो उन्होंने 10 टू द पावर 53 तक नंबर्स बताए, जिसको उन्होंने अपने बुक, यदि आपको कभी समय मिले तो ललित विस्तार एक बुक है, उसको आप पढ़िएगा, उन्होंने तलक्षणा लिखा। रामायण के युद्ध कांड में आप देखिए, जब रावण ने सुख को गुप्तचर के रूप में भेजा कि राम के तरफ से लड़ने वाले कितने बानर हैं, तो उन्होंने जो वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का श्लोक पढ़िएगा तो 10 टू द पावर 60 तक का नंबर लिया, जिसको महोग कहा। तो सिस्टम तो हमने बहुत सारी चीज संस्कृत से ली। तो समागामी जिसको कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, हमें हर चीजों, हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। और मैंने ऊपर पे दे रखा है, देखिए आप, एक आदमी चल रहा है, लेग पुलिंग वाला सिस्टम है, तो एज ए टीचर हमें वो लेग पुलिंग हटाना पड़ेगा। अब आगे चलिए। अब एनसीईआरटी कहती है 56% ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट कैन नॉट डू बेसिक मैथ्स, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। 27% कैन नॉट रीड। सीबीएसई कहती है कि 21% ऑफ द स्टूडेंट पासिंग आउट क्लास 10 ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स इन क्लास 11। रीजन क्या है आप सोचिए। रीजन ये है कि हमने मैथमेटिक्स को फ्लोरिश होने नहीं दिया, चमकने नहीं दिया। क्यों नहीं चमकने दिया? मैथमेटिक्स तो हमारे पास बहुत स्ट्रांग है, आज भी इंडिया में मैथमेटिक्स बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन हम लोगों ने उसको प्रमोट नहीं किया। प्रमोट मतलब जैसे गॉस के टीचर ने प्रमोट किया, आइजक न्यूटन की कहानी पढ़ी, आइजक न्यूटन के टीचर्स थे आइजक बैरो, उन्होंने प्रमोट किया न्यूटन को। तो वो प्रमोशंस हमारे लिए एक बून साबित होगा। हम टीचर्स के को एक इस तरह की हैबिट बनानी चाहिए। हमें से बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक मास लेवल पे हमें इस तरह का एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। चलिए, मैं अब यहाँ पर मैंने 3 पिक्चर्स लिए हैं, आपको दिख रहा होगा। एक है सबसे लेफ्ट में वशिष्ठ नारायण सिंह, बीच में मैंने रखा है डीआर कापरेकर, दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर, और सबसे कोने पे रामानुजन। अब तीनों को देखिए। वशिष्ठ नारायण सिंह के जो प्रोफेसर थे नागेंद्र नाथ राव, उन्होंने उनको प्रमोट किया, यूनिवर्सिटी के रूल को चेंज किया, और 1 साल में 10th के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी के रूल में अमेंडमेंट करके उनको परमिशन दिया। अमेरिका गए, केली, प्रोफेसर केली उनको लेके गए, पीएचडी करके इंडिया आए, आईएसआई, टीएफआर और आईआईटी मुंबई और कानपुर में प्रोफेसर रहे। इनकी थीसिस को इनके सीनियर्स अपने नाम से छपा लेते थे। दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर, डीआर कापरेकर, काफी पहले से मैथमेटिक्स में काफी काम कर रहे थे। रिकॉग्निशन कब मिला? जब मार्टिन गार्डनर ने एक बुक लिखी, मैथमेटिकल गेम्स फॉर साइंटिफिक अमेरिकन, और उस बुक में उन्होंने डीआर कापरेकर की जो पजल्स थी और उनके खोजे गए कुछ नंबर्स को पब्लिश किया, और उसके बाद देखिए उनको रिकॉग्निशन मिल गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो प्रमोशंस है, यदि हम खुद अपने लेवल पे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस है, यदि वो प्रमोशंस स्टार्ट करे, बहुत सारे गांव में प्रतिभा पड़ी हुई है, हम जब तक उनको प्रमोट नहीं करेंगे, हमारे प्रोफेसर जो होते हैं यूनिवर्सिटी में, उनके पास देखिए 100 रिसर्च है,
और 2020 का जो हमारा एनपीई है वो क्या कह रहा है, हमें रिसर्च इनोवेशन करना चाहिए। रिसर्च इनोवेशन कब हम कर पाएंगे, जब हम प्रमोशंस करेंगे ग्रास रूट लेवल पे। ग्रास रूट पर प्रमोशन कौन करेगा, हम करेंगे। तो हमें स्टूडियस होना होगा। हमने अपने आप को लिमिटेड रखा है कि ठीक है, हमें करिकुलम तक नहीं, हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमें करिकुलम के बियॉन्ड भी जाना है। और मैं यहाँ पर 3 आपको चित्र दिखा रहा हूं। लेफ्ट में आपको एक लेटर दिख रहा होगा, जानकी अम्मल रामानुजन की वाइफ है, 1984 डेट भी दिख रहा होगा, 17 मार्च 1984 को रॉबर्ट एसके को एक लेटर लिखा अमेरिका में कि मेरे हस्बैंड का इंडिया में आज तक कोई मूर्ति नहीं बनी है, बस्ट नहीं बना। रामानुजन की डेथ कब हुई, 1920। और लेटर 1984 मतलब 64 इयर्स के बाद जो आदमी इंडिया से इंग्लैंड गया, काफी नाम कमाया, इंडिया आया, देखिए एक फेम का बंदा बन गया, उसको 64 इयर्स तक एक कांसे की मूर्ति के लिए उसकी वाइफ को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं, फॉरेन गवर्नमेंट को, फॉरेन मैथमेटिकल काउंसिल्स को, कि आप लोग। और उसके बाद कुछ वेस्टर्न मैथमेटिशियंस पैसे इकट्ठे करते हैं और पॉल गॉरलैंड जो है वो रेडी होते हैं, और 6 मूर्तियां जो है बस्ट, मतलब अधकटी मूर्तियां जो मैंने आपको दिखाया है, ये मूर्ति बना के इंडिया भेजते हैं। अब ये काम हम खुद भी कर सकते थे, तो हमने अपने हीरोज को पहचानना छोड़ दिया है। तो ये एज ए टीचर, एज ए सोसाइटी, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सिर्फ टैलेंट को पहचाने नहीं, उनको नूरिश ना करें, बल्कि हम उनको प्रमोट करें, हम उनको रिकॉग्नाइज करें। तो मेरे ख्याल से ये काफी था। तो बस लास्ट मैं यहीं से अब करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो हम सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लासरूम तक नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ऑल इंडिया रामानुजन मैथ्स क्लब की तरफ से जुड़े हैं। 2012 में जब रामानुजन, मैं एक बुक लिख रहा था 2012 में रामानुजन की, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से 1 बज गया, तो 2 मिनट में लूंगा। तो 2012 में जब हम लोग रामानुजन का 125th एनिवर्सरी मना रहे थे, तो 125th एनिवर्सरी मनाया हमने, नेशनल मैथमेटिक्स डे डिक्लेयर किया। तो डॉक्टर कलाम ने सजेशन किया कि एक रामानुजन के ऊपर पे एक बुक लिखनी चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया रामानुजन के ऊपर पे एक बुक लिखना। तो मैं चाइल्ड सेंट्रिक की बात, चूंकि आज जॉन पियाजे का जन्म है, तो मैं चाइल्ड सेंट्रिक पे अब आ जाता हूँ। तो मैंने बच्चों के लिए एक बुक लिखी थी कि बच्चों को के अंदर में मैथमेटिक्स कैसे प्रमोट किया जाए। तो मैंने रामानुजन के लाइफ के ऊपर पे एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया और क्विज सेक्शन के लिए एक बुक निकाला, और बहुत सारे जो इंडिया में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे जो रामानुजन के लाइफ के ऊपर पे काम कर रहे थे, उनको एक लेटर लिखा कि सर मैंने ये बुक लिखा है और इसके बारे में यदि आप कुछ कह दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने कहा बाद में मैं कलाम सर से बाद में बात करूंगा। कलाम सर ने चूंकि सुझाव ही दिया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक कुछ और हमारे पास कुछ टीचर्स का, कुछ जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इनका कुछ सहयोग मिल जाए। नहीं मिला। मैंने एंड्रूज, जॉर्ज एंड्रूज को लेटर लिखा। जॉर्ज एंड्रूज और जो रामानुजन की बुक थी, रामानुजन लॉस्ट नोटबुक, तो उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया था और उनकी सारी जो 3400 के करीब प्रॉब्लम्स थे उनको हल किया। तो मैंने जॉर्ज एंड्रूज को चिट्ठी लिखा कि सर मैंने ये बुक लिखा है, और उसकी 10-12 पेजेस भेजी उनको। बड़े खुश हुए। उन्होंने बुक में कमेंट्स लिखा, कुछ गलतियां थी वो उन्होंने उसको
सुधारा कि नहीं, ये नहीं, ऐसे होगा। ये काम हम भी कर सकते हैं। मैं लास्ट अब शुरू कर रहा हूं, लास्ट कर रहा हूं अपनी बात को। रामानुजन मैथमेटिक्स क्लब की तरफ से 2012 में मैंने और डॉक्टर जोशी ने मिलके 2012 में 125 लेक्चर्स जाके अलग अलग इंडिया के कोने कोने में लिया, क्योंकि 125 बर्थ एनिवर्सरी था। तो मैंने और जोशी सर ने कहा कि क्या किया जाए, तो गांव में बच्चों तक पहुंचा जाए। तो हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया, गांव में बच्चों के पास गए। हमने देखा कि यार बच्चों को मैथमेटिक्स सीखने की इच्छा तो है, लेकिन सिखाएगा कौन? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको लेनी पड़ेगी। रामानुजन क्लब के तरफ से हम लोगों ने काफी प्रयास किया है, मैंने और जोशी सर ने काफी प्रयास किया कि इस तरह की एक्टिविटी हो। बच्चों को देखिए, ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। एज ए पीजीटी हमें प्राइमरी वालों को हम ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। हमें इंटीग्रेशन से खेलना बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी बात है। अरे यार, नंबर सिस्टम के बारे में बताओ। आज चूंकि अभी थोड़ी देर नंबर सिस्टम के बारे में बताएगा कौन? ये काम हमारा होना चाहिए। मैं प्रोफेसर हूं, तो मैंने अपने आप को लिमिटेड अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों तक क्यों किया है? हमें अपने आप को ओपन हार्टेडली आगे आना पड़ेगा। हम काम करें बच्चों के साथ। पीजीटीज है वो काम करे, पीजीटीज वो काम करे। अंतिम लाइन बस यही कहूंगा कि एज ए वही मैंने जो लिखा था, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो हम अपने आप को अलग अलग कंपार्टमेंट में ना बांटें। हम सब टीचर हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, चाहे वो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, स्कूल में टीचर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे काम कर रहे हो, पीजीटीज हो। जब तक हम लोग इकट्ठे होके मैथमेटिक्स के लिए यूनाइटेड होके प्रमोशंस नहीं करेंगे, हमारी यही स्थिति रहेगी कि हमें फॉरेन रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ेगी। और जब एक बार ब्रांड लग जाएगा, तब फिर हम रिकॉग्निशन करेंगे, यार तुम तो बहुत अच्छे। 2014 में यदि फील्ड मेडल मंजूर भार्गव को नहीं मिला होता, तो वो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में एक एडवाइजर मेंबर नहीं होते। तो बस मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा। अंजन जी, ओवर टू यू। धन्यवाद सबका, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, बहुत अच्छा किया। Congratulations sir, very effective and interesting. Thank you very much sir. हाँ सर, जोशी सर ने जो बताया एकदम सही बताया आपने। मतलब ये सेशन को बहुत तरोताजा कर दिया है सर। थैंक यू सर फॉर कोऑपरेशन, फॉर योर स्पीकिंग ऑल द थिंग्स सर, एंड गाइडेंस आल्सो सर। थैंक यू सर। तो सर हमारा सेशन यहीं पे खत्म होने जा रहा है। तो इसके पहले हम एक जानना चाहेंगे कि सर कल हमारा सेशन का आईडी, संदीप जी, कल हमारा सेशन का आईडी और मीटिंग पासवर्ड वगैरह क्या सेम रहेगा सर? नहीं, चेंज हो जाएगा सर। भेज देंगे। सर उनको चेंज हो जाएगा। हम दे सकते, अभी दे सकते हैं क्या चैट बॉक्स में सर? नहीं, अभी तुरंत तो नहीं दे सकते सर। ठीक है सर। पाटिल सर, इसी को आप जाके जूम में सेशन में रेकरिंग क्लिक कर देंगे तो ये सेम सेशन और आईडी पासवर्ड रह जाए। किसमें जाना है सर? आप जब माई मीटिंग में जाएंगे, जहां पर ये सेशन दिख रहा होगा, वहीं पर अभी जाके रेकरिंग क्लिक कर दीजिए, तो ये सेम आईडी और पासवर्ड कल के लिए भी रह जाएगा। हाँ सर, इससे बढ़िया रहेगा पार्टिसिपेंट को जुड़ने में। जी। आप सेशन में आप जाइए, वो प्रोग्रेस है सर। माई मीटिंग में रेकरिंग है, उस पर क्लिक कर दीजिए, ये सेम सेशन रहेगा। 1 मिनट सर। तो संदीप जी आप ये करिए, तब तक सर हम अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो थोड़ा 2-4 शब्द वो बोल सकते। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ सर। हम्म। जो मार्गदर्शन यहाँ पे हुआ है सर का, डॉक्टर राजेश जी ठाकुर सर और हमारे एक्सपर्ट, एक अच्छा अध्यापक जब जीवन के सबक सिखाता है तो कोई भी उसे जीवन भर नहीं मिटा सकता। मान भी मिला, सम्मान भी मिला, ज्ञान भी मिला, अभिमान भी मिला, गुरुवर के आशीर्वाद से ही जीवन का सही मुकाम मिला है सर।
और वाह। सफल जीवन सस्ता है सपनों से, सफल जीवन सस्ता है सपनों से, जो मिलता है किसी गुरु की दस्तक से। जीवन सूर्य सा प्रकाशित हो उठता है जब साथ एक सच्चे गुरु का मिलता है सर। जो जो साथ आज हमें मिला है सभी का, तो उससे ही हमारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। और इसके लिए ही नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट की यहाँ पे शुरुआत की गई है कि जो डिवाइड न करते हुए फर्स्ट स्टैंडर्ड से अप टू सभी पीजीटी टीचर्स तक इसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो इसीलिए ही नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट की शुरुआत हमारे चेयरमैन डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर ने किया, ऐसा मुझे लगता है। अंजन बनिक सर, वी विल बी कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू पाटिल सर, थैंक यू वेरी मच। सर 2-4 प्रश्न ले लेते हैं, फिर हमारे चंद्रमौली जोशी सर, हमारे आज का प्रोग्राम का प्रेसिडेंट, वो हमको संबोधित करेंगे। नहीं, ज्यादा तो नहीं करेंगे, खाने का वक्त हो गया है, लेकिन सबको शुभेच्छा दे देंगे। सनी टंडन जी बोलिए। सनी टंडन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल रखिए। टंडन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल रखिए। हेलो, और कोई पूछना चाहता है सर? कोई हैंड राइज? सनी टंडन सर, हेलो। वो पहले सर हैंड राइज कर। सर कैन यू, हेलो बोलिए सर। sir, I don't have any question, I just want to share my experience. Okay. Sir, it was very nice experience to listen to the words of ठाकुर sir, और इन्होंने हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है सर मैथ्स को लेके। धन्यवाद ये इंटरेस्टिंग मैन है। Sir, I feel mathematics is not only the study of reals, it is the study of reality, and Thakur sir has well explained the reality of mathematics. सर आप ठाकुर सर के फेसबुक पेज पर जरूर जाइए, ऑथर आर के ठाकुर, से मिल जाएगा आपको इंफॉर्मेशन। हर रोज उनका सेशन है। Thank you sir, thank you, I will definitely go there. चलिए, जो है एक बार माफी मांग लूं, पहले ही खतरनाक मेरा सेशन ऐसे ही रहता है थोड़ा सा। कुलदीप सर, आप अपने ठाकुर सर, वेरी नाइस सेशन, क्योंकि मैं अभी सुन रहा था बहुत बोल्डली कैसे रियल सिचुएशन को इतनी बोल्ड से आपने कहा। वाकई ये सन्नी टंडन जी भी हमारे जम्मू JNK से ही हैं, ये भी बड़े अच्छे एक्सपर्ट है, लेसन बनाते हैं जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत। कल भी हमारी बात चल रही थी, ये कहते हैं कि मैं हरदम आपके लिए तैयार हूँ कि आपके साथ निशाना बिछाना जो भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो सर आगे नेक्स्ट प्रोग्राम है, आप जम्मू के लिए इनवाइटेड है एज एन एक्सपर्ट। मैं जोशी सर से गुजारिश करूंगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम में ठाकुर सर को जरूर लाइए। थैंक यू सर, बस यही कहना चाहूँगा। रामानुजन क्लब में हम लोग बस टैलेंट ही ढूंढ रहे हैं और प्रमोशन की कोशिश करेंगे। आप लोगों में से जो रिसर्च इनिशिएटिव रखते हैं, मैंने कईयों को प्लेटफॉर्म दिया है, कोशिश करूंगा कई लोगों को प्रमोट यदि कर पाऊं तो बड़ी खुशी होगी। हेलो जी जी, पूछिए मैडम, पूछिए, ऑडिबल। Sir, my name is Krishna Kumari. I am from Hyderabad, Telangana, sir. Thakur sir, firstly I want to thank you so much. That very inspiring. That was a regular session actually. It is about pedagogy. It's going on. But when you start the speech, we felt very inspiring. Inspiring speech of the day, I can say. Thank you. So ma'am. yeah. Sir, I agree with the words you told that we Indians need foreign approval to find one real mathematician, a real mathematician, or whatever the scientist. We really need a foreign approval, even for a toothpaste. We use the toothpaste which is recommended by British Council. This is what happening in the country. That is not good for us. So there is one suggestion: why not our government make a leave apart the teacher segment. We as a teacher can unite. We can promote. I can promote you. You can promote others. So let the government sleep in the deep slumber.
why not we take the initiative from our side? It will take Yes, long sir. time. One thing, sir. We have read about Einstein, Newton, and foreign scientists, but very little about Srinivasa Ramanujan and this Aryabhatta. There are so many Indian scientists, but they have not given any textbook. If No, we no. bring the Thank you. syllabus into the textbook, it comes into थैंक the यू गुरली focus. सर, गुरली सर आपको इनवाइट करते हैं सर. जी हाँ सर, नमस्ते नमस्ते सर सर। राजेश ठाकुर सर को मिलकर बहुत खुशी हुआ सर। बहुत दिनों के बाद हमें अभी मिलने को चांस मिला। अंजन बनकी सर ये व्यवस्था किया है, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अंजन बनकी सर को और संदीप जी को। अभी मैडम ने जो कहा है वो सच है, लेकिन हम मैथमेटिक्स टीचर या कोई भी टीचर हो, हमारा भारत में जो साइंटिस्ट है, टीचर्स है, उनको प्रेरित करना हमारा भी काम है। बच्चों को ये सिखाना चाहिए ऐसे ऐसे है कर, वो हमें भी करना चाहिए और टेक्स्ट बुक में भी आना चाहिए, ये मेरा भी वादा है। और जोशी जी को भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सर। नमस्ते, बहुत Thank बढ़िया you. आपके सेशन। थैंक यू वेरी मच बुल्ली जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारा टाइम बहुत कम है, सो बाकी जो बातें होंगी तो कल हो सकती है, हमारे लिए खुला है। संदीप जी हमको लिंक शायद अभी दे दे, तो तब तक मैं चाहूँगा हमारा सबसे परम गुरुजनोचित जो है और हमारा मार्गदर्शन, जिनके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं और जिन्हें का आशीर्वाद हमें हर वक्त, हर रोज, हर सुबह